پکی ٹھکی 100% 10 شور ہے. اس کا یہ جواب ہے جناب. اچھا عماد بھائی یہ دیکھیں یہ ایک آپس کی بات ہے. ایک بڑی اچھی جگہ پہ آپ پلمبرنگ کی جاب کرتے ہوں اور میرے اندازے کے مطابق جہاں تک مجھے پتا چلا ہے تنخواہ 1,00,000 1,50,000 سے ابو ہی ہوتی ہے جہاں پہ یہ پلمبر فٹ کرتا تھا. یہ بڑے پائپ فٹ کرتا تھا. بڑے پائپ نہیں ہوتے, بڑے بڑے پائپ جو اکثر آپ جی ٹی روڈ پہ جائیں تو سائڈوں پہ جی ٹی روڈ کو کھود کے وہ بڑے کتر کے پائپ رکھے ہوتے ہیں, وہ فٹ کرتا تھا یہ. تو اس کی تنخواہ ظاہر عام کو 1,000-1,200 تو ہوگی نہیں, کی تنخواہ لاکھوں میں ہوگی. 1,00,000 کی سرکاری جاب چھوڑ کے آپ آ کے بن گئے ہیں پلمبر سے ایک عالم بننے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی آپ جمپ مار رہے ہیں ٹڈی کی طرح زمین سے ڈائریکٹ فصل کے اوپر. کیا کہنا چاہیں گے آپ, کیوں نکالا گیا اس کو, وہاں سے نکالا گیا یا خود چھوڑا, یا اس کو اس طرح سے زیادہ پیسے نظر آ رہے تھے, یا دین اسلام کے خلاف کام کر کے اس کو لگ رہا تھا کہ میں جو ہے نا فیم حاصل کر لوں گا. انسان فیم کا بھی بھوکا ہوتا ہے نا بعض اوقات. ایسا ہی ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ہے ایٹامک انرجی میں تھا اسلام آباد میں, اور فیم کا تو بھوکا ہے یہ بندہ. یہ جھوٹ بولتا جی کہ ہوں فیم دی گلا کدھر ہی ہیں, میں تو فیم تو اوپر ہاں. جھوٹ بولتے ہو تم فیم کے بھوکے ہو انجینئر مرزا صاحب, ٹھیک ہے جی. اور جو ہے میں تو یہ کہوں گا کہ منافقت ہے اس کے اندر کاشف بھائی. اب میں تو اصل میں نا مجھے اس کے اوپر غصہ ہے کہ یہ جھوٹا آدمی ہے, قرآن و سنت کا نام لے کر جھوٹ بولتا ہے, اور فرقہ اس نے خود بنا لی ہے, انجینئرنگ فرقہ ہے, پلمبرنگ فرقہ ہے. تو اس کو جو ہے مشہوری کا شوق ہے, اور اس کو نکالا اس وجہ سے گیا ہے. مجھے کیوں نکالا کہ جو ہے اس نے جب سے یہ ٹروپی ڈرامہ شروع کیا ہے تو سننے میں آیا, واللہ عالم, اللہ کو پتہ ہے اب کیا حقیقت ہے, جو سننے میں ہے کہ اس نے جب سے اختلافات شروع کیے علماء سے, پھر اس نے جھوٹ بولا اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہوا, تو پھر اللہ معاف کرے اس کے ساتھ کچھ بندوں نے رافضیوں نے اس کو سپورٹ کیا, ٹھیک ہے تیری ریٹائرمنٹ کرا لینے ہیں, تو وہ اپنے اسلام کے خلاف گل کرتا ہوں. سننے میں جو اصل بات یہ ہے کہ فیم کا تو بھوکا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. فیم کا بھوکا نہ ہوتا نا یہ کبھی کالز کر کے یہ نہ کہتا ان کو نیوز والوں کو میرا انٹرویو کرو, ٹھیک ہے جی. اب احمد شہزاد احمد ہے, وہ کرکٹر ہمارا جو ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کا, وہ اس سے ملنے کے لیے آیا ہے. اب پتہ چلے کہ اس کے ذریعے اوروں سے بھی کرکٹر سے نا کرتا ہے, کمیونیکیشن کرتا ہے کہ ان کو میری ویڈیو سینڈ کرو, ان کو میری ویڈیو سینڈ کرو. نادر علی جو ہے پی فار پکاؤ والا, وہ اس سے بالکل اس سے ساتھ اٹیچ ہے. اب وہ جناب نادر علی صاحب اندر سے شیعہ ہیں, اندر سے رافضی ہیں, مجھے پتا ہے. اب نادر علی طارق جمیل صاحب کو ملا 3-4 دن پہلے, تو اس کی باتیں کر رہا تھا طارق جمیل صاحب سے. حالانکہ طارق جمیل صاحب انجینئر مرزا کو مکار, جھوٹا, منافق کہتے ہیں. یہ طارق جمیل صاحب کے سینٹیمنٹس ہیں, مگر نادر علی صاحب بہت غلط کرتے ہیں, ادھر کی ادھر کی ادھر لگاتے ہیں, اور نادر علی اس کی ویڈیوز کو شیئر بھی کرتے ہیں, جو کہ پتہ چلا ہے. اور عاقب فرید بھی آیا ہوا تھا. عاقب فرید کو میں اتنا ہی کہوں گا آپ کے چینل کے توسط سے, آپ ڈرو اللہ سے یار. عاقب فرید آپ کہتے ہو آپ طارق جمیل صاحب کے رشتہ دار ہو, کوئی رشتہ دار نہیں ہو, آپ جھوٹ بولتے ہو. آپ بھی اس کی ہی ٹریک پر چل رہے ہو اور اس کی ویڈیو شیئر کرتے ہو انجینئر مرزا کی. تو یہ ساری نا ایک کیا اسے کہتے ہیں پوری پلاننگ سی ہے, اور فتنے کو یعنی کہ جتنا بھی پروموٹ کیا جا رہا ہے تو اس کے ذریعے کیا جا رہا ہے انجینئر مرزا کے. عماد صاحب آپ کو یہ بتا دوں میں کہ اس وقت مرزا جونیئر کے اسٹوڈنٹ جو ہیں بہت اتاولے ہوئے ہیں کہ ہمیں اوپر لائیو لیا جائے. لیکن میں آپ کو بتا دوں, اپنے ختم نبوت کے مجاہدین کو بھی بتا دوں, مرزا جونیئر کے اسٹوڈنٹس کو بھی بتا دوں کہ عماد صاحب کی ایک ہی گزارش تھی لائیو آنے کے لیے کہ یا تو مفتی صاحب بات کریں گے, یا انہوں نے مجھے اتنی عزت افزائی بخشی کہ میں ان سے بات کروں گا. تو تمام ساتھیوں سے دل برا نہ کیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ابھی کافی ساری سٹریمز ہونی ہے عماد بھائی کے ساتھ. نیکسٹ کچھ سٹریمز میں جب عماد بھائی اجازت دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور شامل کیا جائے گا. فی الحال کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں چونکہ زبان میرے ساتھ ہوئی ہوئی ہے اور استاد محترم کو اس بات کا معلوم نہیں تھا. استاد محترم نے لنک اس لیے جو ہے وہ
लगा दिया था वहां पे, मैं बता नहीं पाया था उस्ताद मोहतरम को, ये मेरी गलती है। चौधरी तैयब साहब भी आए हैं जी, मानता हूँ ज़मीर कियानी भाई, जी जी, खुशी इस बात की हो रही है। ज़मीर कियानी भाई एक मिनट, ये चौधरी जी ठीक हो गया। चौधरी तैयब साहब भी आए हैं, इनका मुनाजरा हुआ है कल मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी साहब से, और ये भी स्टूडेंट हैं मिर्जा इंजीनियर साहब के ना। और चौधरी तैयब साहब क्या हाल चाल है, ठीक है, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाओ भाई, आप कैसे हो? जी अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी नजर शफकत अपना है। हबीब भाई, अच्छा जी, हबीब भाई ये भी वो पंडित जो है, पंडित लेखराम का औलाद जो है, मिर्जा तो नहीं है, पंगी है, क्योंकि बड़ा मिर्जा जो था ना, नस्ल उसकी पंगी थी, और पंगियों का पीर था इमामुद्दीन। अच्छा सुना होगा ना, मुसलमानों को तो पता है ना इमामुद्दीन कौन था। वो पंगियों भाई एक मिनट, एक मिनट, तैयब चौधरी साहब, जी 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 चौधरी साहब। अच्छा, आपने अल्लाह को जान देनी है, आपने झूठ नहीं, जिधर मैं झूठा हुआ आपने मुझे बोल देना, ठीक है? जी जी भाई कल जो हमने बात की है, मैंने कोई एक रेफरेंस या कोई एक बात हमें तो नहीं पता यार, हमें नहीं पता कल क्या हुआ है। एक मिनट, इनका ना यूट्यूब पर लग गया मुनाजरा, लगाए ना वो इनका मुनाजरा, पता चले कल क्या हुआ है। बंदे तेरे नाल मैं गल भी तो नहीं यार, हबीब भाई कल क्या हुआ है, क्या ये लाश आया था, काला कालू है था, कौन आया था कि कोई और मिनी गार्ड बन गए, क्या हुआ कल? बताएं ना, क्या कर रहा है हबीब भाई, ये क्या कर रहा है? मैं कहता हूँ पहले बताएं कल हुआ क्या है। मैं बताता हूँ चौधरी साहब, मैं बताता हूँ, ज़मीर कियानी भाई सब्र कर ले, एक मिनट चौधरी साहब, मैं बताता हूँ, चौधरी साहब मैं बताता हूँ, एक मिनट। ज़मीर कियानी भाई, मैं बता रहा हूँ आपको कि इनकी बात हुई थी मुफ्ती साहब से, ठीक है? वो इनका मुनाजरा जो हुआ था वो यूट्यूब पर लग चुका हुआ है, ठीक है? और आज भी हो सकता है कि मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा हो जाएं, मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा हो जाएंगे तो दोबारा बातचीत तो इनके साथ शुरू हो जाएगी। जी चौधरी साहब, इससे हमने तो नहीं बात करनी। हाँ, अगर मिर्जा जी को उससे करेंगे, इसे तो नहीं करनी, इसको निकाले बाहर जनाबे अली, जब इनके साथ बात करे। अभी इसे हमने क्या बोला है, ये मिनी गार्ड है भाई, इनके साथ बात होनी है मुफ्ती साहब की। जी चौधरी साहब, चले सही है, लेकिन जब वो नहीं आते हम मिर्जा जूनियर मेरे सामने चट्रोल करेंगे। यार तू मिर्जा जूनियर की चट्रोल करनी है, उस हरामजादे की जो महफूज बिल्डिंग पर आ गया है, कौन मना कर रहा है? हरामजादे की बात हमने करनी है, जो मिनी गार्ड बनाता है, जो औरत सेक्स करवाता है, जो कहता है तुमको 4 शोर मिलेंगे, जो कहता है क्योंकि मुझे ये बात दे रहे ना, जो कहता है कि मैं जनाबे अली मेहदी हूं, पता नहीं क्या क्या है। एक मिनट, हमें पता नहीं है, और उसके मानने वाले भी सारे कादियानी, वो सारा खंजीर है, खंजीर का पूरा टब्बर है मिर्जा कादियानी के लेकर ना जेलम तक, सारा खंजीरों का टब्बर है। ये गटर जो कादियानी में है ना, उसकी पाइप लाइन जो है ना, इधर से पहले तैयब साहब उनकी सुन लें। अच्छा सुननी क्या है, मैं कह रहा हूँ लान तक भेजे, जितनी मर्जी भेजे, मैं को इसका दफा करने आया हूँ। इधर से निकलती है जलम से ऊपर, ये मंगला डैम जो बना इसलिए बना के ये टूटेगा, सारा जलम जो है ना वो चला जाएगा आगे समुद्र में। कियानी भाई इनकी बात होनी है, इनको बुलाया गया। हमने इस खबीस से साथ बात ही नहीं करती, ये मुफ्ती साहब की बात, हमने बात ही नहीं करनी। ये मुफ्ती साहब आए तब तक नहीं, गलत सुनो भरावा, मेरे सामने तू जा मिर्जे ते लानत भेज, जा लानत भेज। मिर्जा जूनियर टट्टियों में जेलम की गोते खाते खाते बड़ा मिर्जा मर गया लाहौर में, ये आपकी खाते खाते, और अपना सर पावे से टकरा कर पढ़वाते पढ़वाते मिर्जा कादियानियों की पूजा पाठ करवाता है। और मिर्जा जूनियर पर लानत बेशुमार, मिर्जा जूनियर खबीस लाइन मलऊन काफिर कजाब दजार पर लानत बेशुमार, और मिर्जा जूनियर लानती प्लम्बर पर लानत बेशुमार।
जीता है आज टट्टी खाने में, कल मरेगा 26 मई को टट्टी खाने में। क्या नहीं मरेगा मिर्जा जूनियर जलमी टट्टी खाने में? कोई बंदा इसे कह सकता है? कौन बनाता है मिनी गार्ड? हिंदू बनाते हैं। ये हिंदू की औलाद है, ये पृथ्वी की राज की औलाद है जिसने अलेक्जेंडर के साथ लड़ाई की थी जेल में। जमीर भाई थोड़ा सा मौका मुझे दें प्लीज, मेहरबानी। जी बोले जी बोले। इसको नहीं बोलने देना, इस मर्ज़ई कादियानी को नहीं बोलने देना, आप बोले। मैंने इनसे ही बात करनी है, मैंने इनसे ही बात करनी है। यार मेरी तरफ से तू इंजीनियर पे लानत भेज, मैं तुझे रोकने नहीं आया भाई, मैं तो हबीब से बात करना है। मेरी तरफ से उस पे लानत भेज, मैं उसका क्या लगता है? हम सब भेजते हैं भाई, हम सब भेज। जी जी भेजो इंजीनियर पे लानत भेजते हैं। आपकी बात हो रही थी गैरुल्लाह से मदद मांगना, वो आपकी बात हो रही थी मुफ्ती साहब के साथ ना, आप फिर चले गए थे, फिर दोबारा आपको लेने की कोशिश की, आप चले गए थे दोबारा। कल की बात है ना, तो गैरुल्लाह से मदद मांगना। मगर एक बात मैं तैयब साहब आपसे करूंगा, आपसे एक गिला है कि मुफ्ती साहब ने तो माशाल्लाह आयात मुबारका और हदीस मुबारका भी लगाई और सब कुछ किया, मगर आपने कोई जवाब, किसी बात का जवाब नहीं दिया। पूरी अवाम ने सुना है, पूरी दुनिया ने सुना है, और यूट्यूब पर भी तैयब साहब आप ये चल रहा है, मगर ये गलत तरीका है कि जब एक आयत पर बात होनी शुरू हो जाए ना मेरा भाई तैयब साहब, अगर एक आयत पर बात होनी शुरू हो जाए, मुफ्ती साहब कर रहे थे ना, तो आपको चाहिए था कि एक आयत पर रहते। आपने फिर वो आयत छोड़कर इया का नाबुद व इया का नस्ताईन पे आ गए, तो ये तरीकाकार आपका गलत था। आपने मैं कल बोला नहीं हूँ। सुनो हबीब भाई जी बोले उन्होंने ये बात की थी कि ये आयत काफरों के लिए नाज़िल हुई है, ये मुसलमानों के लिए नहीं है। तो मैंने क्या कहा था कि ठीक है, अगर ये काफरों के लिए कह रहे हो आप, मुफ्ती आप कह रहे हो, ओके इसको छोड़ दें आप। अब इससे ज्यादा मैं क्या करता? जब वो 4-5 सबूत देकर, मुफ्ती साहब ने 4-5 सबूत देकर, ये जानते हकानियत साहब भी बैठे हुए ऊपर है, और ये जो दूसरी आईडी बैठी हुई है मिर्जा कादियानी वाली, ये भी मेरा ख्याल कल बैठे हुए थे। ये 4-5 सबूत देकर मुफ्ती साहब ने साबित कर दिया था कि जिब्राइल भी गैरुल्लाह है, गैब है। और जिब्राइल से मैं वो आयत पढ़ के आया हूँ मेरे भाई, एक मिनट मेरी बात सुनो, वो मैं आयत पढ़ के आया हूँ। और कल मैंने मुफ्ती साहब को कितनी दफा कहा था कि ये जो आप हदीस, मेरे भाई अगर उन्होंने सामने अरबी लगा दी और मैं अरबी पढ़ के उसका तर्जुमा नहीं कर सकता, मैंने कहा था इसका तर्जुमा लगाओ। अगर मुफ्ती साहब आप खुद ना पकड़े गए तो तर्जुमा लगाए। आप फिर आगे थे बाबों की तरफ, ठीक है ना। अगर आपको कुरान पढ़ना आता नहीं है, तर्जुमा करना आता नहीं है, पढ़ना नहीं आता, तो आपको सिर्फ यही आता है कि बाबे आपके बाबे। और हबीब भाई मेरी बात सुनो, कुरान पढ़ना और बात है, कुरान पढ़ के उस एक आयत का तर्जुमा करना वो और बात है। मैं इतना आलम नहीं हूँ कि अरबी पढ़ता नहीं हूँ साथ में तर्जुमा भी करूँ। अपना अबीब भाई माफ करना, जरा ये अपना जिससे भी आप बात करते हैं, जरा किसी से पूछेंगे कि कौन सा लोग तर्जुमा पढ़ते हैं? कहीं वो मर्ज़ई कादी यहूदियों वाला वो इस्लाम 360 तो नहीं पढ़ते, या वो तफसीर सगीर जो यहूदी ने लिखी है वो तो नहीं पढ़ते? यहूदियों का कहते हैं हम तो अल्लाह हज़रत का पढ़ते हैं, फिर शायद वो ही यहूदी थे। मैं अबीब भाई से बात कर रहा हूँ, मैं किसी मर्ज़ई कादियानी किसी टट्टी खाने वाले से बात नहीं कर रहा, मैं अबीब भाई से सवाल कर रहा हूँ। वही ना हज़रत के बारे में बात की है, तो फिर नहीं तो मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो अल्लाह हज़रत बात ये अबीब भाई, ये जो बंदे हैं ये क्या ये आलम है जिनकी बात आप कराते हैं मुफ्ती साहब से? क्या ये लोग आलम है? अगर आलम है तो सही है, वरना किसी जाहिल गंवार मिनी गार्ड से क्या बात करनी है हमने? मुफ्ती साहब आलम है। जी मुफ्ती साहब आलम है जी मुफ्ती साहब आलम है। इसलिए कल मैं जब बताने लगा था ना फिर उनकी आला हज़रत की करतूतें, तो फिर मुझे क्यों उन्होंने सबने बोला था क्या तुम आलम हो? और भाई मैं फिर अल्लाह हज़रत की करतूतें बताता हूँ ना इधर। कौन से स्कूल से पढ़ा है? कौन से स्कूल से पढ़ा है? आपके आला हज़रत की किताबों से पढ़ा है। मुझे नहीं ना, मैं कहता हूँ मैं आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की बात नहीं करता, मैंने कहा क्या तुम आलम हो? बात करते, मैं उनकी बात करता हूँ ना। जब उन्होंने किताबें लिखी आपने पढ़ी और उन्होंने नबी पाक की शान में गुस्ताखी किया, पढ़ जाहिल उलमाए किराम से बात करने आ गए, ये बुरी उलमाए किराम।
उलमाए कराम कौन है आपका? उलमाए कराम मिर्जा कादियानी आपका उलमाए कराम है कौन है? मैं अल्लाह हज़रत की बातें बताता हूं। मिर्जा कादियानी को क्या समझते हैं? आला हज़रत के बारे में अगर बात करोगे तैयब तो मैं तुझे जवाब दूंगा दूसरे तरीके से, ठीक है ना? मैं तुझे आराम से दूसरे प्यार से भाई एक मिनट पता ही नहीं है। वाला एक मिनट ठहर जाएं सारे, एक मिनट सब ठहर जाएं भाई, एक मिनट मुझे गुफ्तगू करने दें से। मैं जानता हूँ तैयब साहब को। जी तैयब साहब, आप किस मौजू पे गुफ्तगू करना चाहते हैं? अपना मौजू बता दें ताकि उस लिहाज से गुफ्तगू कीजिए आपके साथ। अल्लाह के बंदे, मैं इधर बात करने आया था, लेकिन ये जो ला नबी आबाद है, ये यार एक इधर मिर्जे को गालियां देते जा रहे हैं मेरी तरफ से। छोड़ दें उस बात को, बस करो। आप बताएं आप किस मौजू पे गुफ्तगू करना चाहेंगे, वो मौजू सिलेक्ट करें फिर गुफ्तगू करते हैं। मैं अल्लाह हज़रत पे बात करने आया हूँ। जी अल्लाह हज़रत पे किस चीज पे? मिर्जा कादियानी पर बात करनी है, उसके बच्चा जो है ना मिर्जा जूनियर शैतान जेलमी, उस पर बात करनी है। लाइन जी किताब उसको खोले। मैं अल्लाह हज़रत की काली करतूतों पे बात करने आया हूँ। हाँ, मैं मिर्जा इंजीनियर की काली करतूतों पे बात करेंगे। मैं लगाता हूँ मैं अल्लाह हज़रत पे बात करता हूँ। उन्होंने जो दजल किया ना, जो बकवासियात फरमा के गए हैं ना, तो मैं उन पे बात कर रहा हूँ भाई। जो तल्ले इंजीनियर में भैन ये वो बताऊंगा मेरे लिए इंजीनियर नहीं है। आप निकालो गाली इंजीनियर को, मुझे क्या, मेरे लिए इंजीनियर निकालो गालियाँ। जी जी वालेकुम अस्सलाम। आपके लिए इंजीनियर हुज्जत नहीं है। तैयब बस एक मिनट। हबीब भाई, ये किसी को भी मानने वाला नहीं है, इसका बाप ही एक नहीं है, ठीक है? तो इसने कभी ये करना है कभी वो करना है, इसके साथ फजूल बहस करनी है, ठीक है? इसको तूने अपने बाप की तस्वीर लगाई है ना दज्जाल की, तू इसका मानने वाला ना दज्जाली। इसको चलता करें, फायदा नहीं है। किसी अच्छे बंदे को लें जो बात कर सके। तू गंदा अंडा है तैयब, तू गंदा अंडा है। अगर मैं अबीब भाई, ऐसे खबीसों को, ऐसी मिनी गार्ड की गंदी औलाद को, ऐसे ब्राह्मणों की औलादों को, ऐसे टट्टी गुड़ और पत्थर खाने वालों को कभी भी ना लिया करे। देखें जो उलमा से बात करते हैं वो ये जो हरामज़ादा तैयब है ना, ये जो हरामज़ादा तैयब है, ये हरामज़ादा तैयब है जिसकी माँ के यार मिर्जा इंजीनियर ने 4 खामद बना दिए हैं। ये मिर्जा इंजीनियर ने बनाए और ये बहुत खुश है कि मेरी वालिदा माजिदा के 4 यार बनाए हैं और मेरी वालिदा अब गश्ती हो गई है, इसलिए ये बहुत खुश है, मिर्जा इंजीनियर की फेवर करता है और उसको ही ये सपोर्ट करने आता है और आला हजरत की बात शुरू करता है। जनाब जी, ये आला हजरत ने ये कर दिया तो आला हजरत ने ये कर दिया। आला हजरत को छोड़ो, मिर्जा इंजीनियर की बात करो कि जो मिर्जा इंजीनियर ने तुम लोगों को 4 यार तुम्हारी माओ को दिए हैं, वो बताओ। तुम्हारी माओ ने तो ढोलकी रख रही होगी, खुशी का इजहार करती होंगी कि भाई मिर्जा इंजीनियर ने हमें इतने जनाब दे दिए हुए हैं, हमने खामद दे दिए हैं। खान साहब आ गए हैं जी, खान साहब आए हैं, खान साहब आए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सब फैजान भाई, सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। इधर आकर ये आला हजरत से इसने क्या लेना है? इसका आला हजरत से काम क्या है? नहीं, ये खुश हो रहा है ना जी खान साहब। इसका जो इंजीनियर है वो मिर्जे का छोकरा है, ये उन पे बात करे, ये क्या कुत्ती चोरों नाल। ये खुश हो रहा है ना जी, खुश हो रहा है, इसलिए खुश हो रहा है कि इसकी माँ को गश्ती बना दिया मिर्जा इंजीनियर ने और उसने उसके ऊपर बंदे चढ़ा दिए 1 से ज्यादा। ये भी तो देखे ना, 1 से ज्यादा खामद चढ़ा दिए हैं उसने। ऐसा ही है, ये इस पर खुश है बहुत ज्यादा। ये खुश है ना, इनकी वालिदा माजिदा भी खुश है। अस्सलाम वालेकुम सैयद साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सैयद होली स्पिरिट साहब तशरीफ लाए हैं आप। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी सैयद साहब, क्या हाल चाल? ये आवाज ठीक आ रही है आपको? जी ठीक आ रही है, आप सुनाएं। वालेकुम अस्सलाम। हुजूर आप क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं आप? जी, आप किस चीज पर बात कर रहे हैं? बात ये हो रही है जी, कल मनाजरा हुआ है, ये एक चौधरी तैयब है
इसके साथ मुनाजरा हुआ था मुफ्ती साहब का गैरुल्लाह से मदद मांगना, और मुफ्ती साहब ने साबित कर दिया था माशाल्लाह आयत कुरान पाक से और हदीस मुबारका से कि जिब्राइल भी मदद कर सकता है। अल्लाह फरमा रहा है जिब्राइल भी मददगार है, और भी 4-5 आयत मुबारका लगाई। तो इस बंदे ने, इस बदबख्त ने, इस तैयब ने ये आगे से ये कर दिया कि जी वो जो बताएं जी हमें ईया का नाबुद वैया का नासन, यानी कि एक दरख्त से दूसरी दरख्त पर छलांग लगाने का तरीका इसने अपनाया, जैसे मिर्जा इंजीनियर करता है, और मिर्जा इंजीनियर की ये सपोर्ट करता है और उसका फॉलोवर है और उसकी सपोर्ट करता है, और उसका मेरा ख्याल है इतना खुश है, इतना खुश है, इसकी वालदा भी इतनी खुश है, क्योंकि मिर्जा इंजीनियर तो कहा है कि भाई कल क़यामत के रोज आपको, आपकी माँ को, आपकी भाभी को, आपकी बीवी को एक से ज्यादा खामद मिलेंगे, 4-4, 5-5, 10-10 मर्द मिलेंगे। तो ये बहुत ज्यादा खुश है। ये मिर्जा इंजीनियर है, तकरीबन मेरा ख्याल है तकरीबन क्या 100%, यानी कि जो मिर्जा कादियानी के अकायद और नजरियात हैं वही अकायद और नजरियात इसके हैं जी। सैयद अली साहब। हाँ जी, तो ये मिर्जा कादियानी को तो नहीं मानता ना? मिर्जा कादियानी को नहीं मानता डॉक्टर साहब, ये उसको नहीं मानता। कल मुनाजरे के दौरान इसको मुफ्ती साहब ने एक हदीस लगा कर दी, अभी नीचे मैसेज भी इसने किया हुआ है, ये वो हदीस पढ़ नहीं सकता था, तो खुद ही मुफ्ती साहब को कहता है कि मुझे उसका तर्जुमा भी अभी लगा कर दो। तो बहादुर ये इतना है, हदीस ये अरबी में पढ़ नहीं सकता और बातें इसकी सुन लीजिए। अच्छा, तो ये मतलब ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि पढ़ना लिखना आता नहीं है और फतवे कर देता है। जी, मुनाजरे के दौरान कल डॉक्टर साहब इधर ही सब ये हम दोस्त मौजूद थे, और नीचे अभी इसने कमेंट भी किए हुए। मुनाजरे के दौरान मुफ्ती साहब को कह रहे हैं, उससे मुनाजरा है उसी को कह रहे हैं मुफ्ती साहब को कि इसका भी उर्दू तर्जुमा भी लगाओ। देखो इसकी बातें सुनो। जहालत है ना। देखें, ये मिर्जा जूनियर जो है वो जाहिल शख्स है और शातमे रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसकी जो अक्सर बातें हैं वो कुरान पर भी बहतान बांधता है, वो हदीस पर भी बहतान बांधता है, और उसका इल्म जो है ना बिल्कुल नहीं है, जीरो है। इसने पूरी जिंदगी, इसको फिक़ह के बुनियादी असूलों का नहीं पता है, इसको तो ये तक नहीं पता है कि हदीस और कुरान पर बहतान जो वो लगाता है उसका गुनाह कितना हो, इस पर लानत कितनी पड़ेगी। तो ये अगर इसकी आप वीडियो सुने तो ये कभी हदीस पढ़कर नहीं आपको पूरी सुनाएगा। ये कादियानियों की तरह दरमियान से निकालता है। ये ज़हनी मरीज है, जिस तरह मिर्जा कादियानी स्किज़ोफ्रेनिक था, इसमें भी बहुत सारे सिम्टम्स पाए जाते हैं। मैंने तो कभी इसको तफसील से नहीं पढ़ा है, मिर्जा कादियानी को तो हमने बड़ी तफसील से पढ़ा है। तो ये ज़हनी मरीज किस्म का एक शख्स है जिसके पीछे चंद जाहिल लोग लगे हुए हैं, और तो कुछ भी नहीं है। इसके ये जो आपको फॉलोअर्स लगते हैं इतने मिलियन, कोई इतने मिलियन कुछ नहीं है। ये अपने फॉलोअर्स जो है ना वो भी खरीद के इसने रखे हुए हैं, और जो लाइक्स हैं वो भी खरीदता है। बल्कि कहा जाता है कि ये अपनी तनख्वाह का बहुत बड़ा हिस्सा जो है ये लाइक्स और फॉलोअर्स खरीदने में खर्च करता था, और ये इसके और इसकी बीवी के दरमियान झगड़े की एक बहुत बड़ी वजह थी। तो बाद में जब ये इसने लोगों से चंदा इकट्ठा करना शुरू किया, और ये लोगों से पैसे बड़े ईंठे इसने दूसरों से, तो उसका भी अब भी ये यही करता है। इसको कहें कि नया अकाउंट बनाए और हम उस अकाउंट को मॉनिटर करते हैं और देखते हैं कि कितने लोग इसको लाइक करते हैं। हमने तो इसका अकाउंट, जो मिर्जा जूनियर का अकाउंट, हमने एनालाइज किया हुआ है। इसमें 90% फॉलोअर्स इसके जाली हैं, और 90% से ज्यादा लाइक्स जो आते हैं ना, आप देखेंगे कि वो कुछ घंटों के अंदर आ जाते हैं। ये नहीं कि आहिस्ता आहिस्ता आते रहे, वो 7-8 घंटे के अंदर वो आ जाते हैं। जहां आपने खरीदे, पैसे दिए, तो वो आगे, तो लोगों को एक इल्यूशन उसने क्रिएट किया, आप उस इल्यूशन धोखेबाजी में आ गए हैं, बस इतनी सी बात है। अच्छा, ये बोर्ड शाह साहब,
ये बोट्स होते हैं जो ये खरीदता है? हाँ हाँ, आप भी खरीद सकते हैं। वो एक हमारे भाई हैं, उनका नाम ICU है, उन्होंने रखा हुआ। एक दिन हम बैठे थे तो ब्रॉड लगाई हुई थी, तो उस पर 50-60 लोग थे, जैसे यूजुअली आ जाते हैं 50-60 लोग। तो मैंने उनसे कहा, और बल्कि हमारे साथ वो एक और भी थे हमारे दोस्त, उन्होंने कहा कि भाई ये फलाने की ब्रॉड पर तो 200-250 है मिर्ज़ाई की। तो मैंने फिर ICU साहब से कहा कि मैंने कहा भाई इनको डेमोन्स्ट्रेशन दो। तो उन्होंने कहा जी आप 15 मिनट इंतज़ार करें, आपके 500 हो जाए से ज़्यादा हो जाएंगे। उन्होंने 500 बॉट्स ऐड कर दिए। वो पूरी ब्रॉड 550, 560 बल्कि फिर ज़्यादा होनी शुरू हो गई। और उसमें 500 बॉट्स थे, उसके पैसे दिए उन्होंने $10 या कितने कुछ घंटे के। आप ये परमानेंट तौर पर बात सर्वर हैं जो आपको ये बॉट्स प्रोवाइड करते हैं। और आपको बॉट्स के बारे में ये बता दूं कि अगर आप समझते हैं ना कि ये सिर्फ चंद मुजरम और इलीगल लोगों का काम है, तो आप गलत समझते हैं। सऊदीया की हुकूमत ने 10 मिलियन के करीब बॉट्स खरीद रखे हैं। वो एक ऑटोमेटिक प्रोग्राम होता है जो हुकूमत के बिहाफ पर ना ट्वीट करता रहता है, या जिस मीडियम सोशल मीडियम पर आप हैं वो मैसेज भेजता रहता है। बॉट्स की प्रॉब्लम ये है कि वो एक काम ही कर सकते हैं। आप मल्टी फंक्शन बॉट्स बहुत कम है। अगर लाइक करने वाला बॉट है तो वो आपको लाइक ही करेगा, बाकी अगर आप उससे पूछते रहे भाई तुम कौन, तुम्हारा नाम क्या, हालांकि उसका एक नाम नजर आएगा, वो जो फोटो बनाने वाले ने लगाई है वो भी नजर आएगी, लेकिन वो आपसे इंटरेक्ट नहीं कर सकता। वो एक प्रोग्राम है। अगर उसको लाइक करने वाला बॉट आपने बनाया तो वो आपको लाइक करके फिर वो गायब हो जाएगा। अगर आपने फॉलो करने वाला बनाया तो वो आपकी ब्रॉड पर आकर बैठ जाएगा, आपको नजर आएगा बिल्कुल सही आदमी की तरह। मुख्तलिफ जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो IT डिपार्टमेंट हैं, उन्होंने ऐसे बॉट क्रिएट कर रखे हैं क्योंकि वो वक्तन फवक्तन एक मैसेज भेजते हैं मीडियाज पर या लोकल नेटवर्क पर। तो बॉट जो है ना, ये इसका इस्तेमाल इलीगल हो सकता है, लेकिन बॉट इटसेल्फ जो है ना, आजकल तो हुकूमतें और इंस्टीट्यूशंस यूज कर रही हैं बॉट्स को। आप भी खरीद लें, लेकिन आप खरीद के उसके साथ करते क्या है और किस किस्म का खरीदते हैं, उस पर क्वेश्चन रेज किया जा सकता है कि आप कोई गैर कानूनी काम करते हैं। तो इसने बेशुमार बॉट्स खरीद रखे हैं, बल्कि इसके तो साला बैंकक्रप्ट हो गया ये जो कुत्ते की शक्ल वाला है छोटा मिर्जा। ये तो इस पर तो इस बात का इल्जाम भी लगा है, इस पर तो मुकदमा भी हुआ था एक मुकदमे में, और इस पर तौहीन रिसालत के 7 मुकदमे रह चुके हैं और ये 6 मरतबा गिरफ्तार किया गया है इस इल्जाम में। और इस पर बॉट रखने का भी जो है ना, बॉट लगाने का और मिसकम्युनिकेशन का इल्जाम भी है ये छोटे मिर्जे पर। तो अगर आप समझते हैं कि इसको बहुत दुनिया सुनती है तो आपकी गलतफहमी है, मैं क्या कह सकता हूं आपको। हमने तो इसका जो जब से आपने मुझे इसका बताया तो हमने इसका अकाउंट एनालाइज किया, 90% बॉट्स हैं इसके पास। और लाइक्स एक दफा इसकी एक वीडियो पर 1.6 मिलियन लाइक्स थे एक दिन में। तो बॉट्स जो है ना, एक जो IT के प्रोफेशनल प्रोग्राम है ना, जो कंट्रोल करते हैं, जो वर्क स्टेशन पर होते हैं, वो एनालाइज कर लेते हैं। एक खास प्रोग्राम आता है तो उस पर मेरे सामने उसने डाला, उसने 5 मिनट लगाए, उसने कहा कि ये 93.6% बॉट्स लाइक कर रहे हैं इसको, इसकी असल लाइकिंग जो है वो 1800 है और 1.6 मिलियन आ रही थी। अब आप मुझे बताएं कि उन्हें तो तानू सारे अगे लाया होया ना बॉट्स देना। नहीं, ये वो मर्जियों कादियानी की आबादी वाला हिसाब है कि हम इतने करोड़, इतने। मैं कहता हूँ आपने बिल्कुल क्या नहीं भाई, आप बिल्कुल सही समझे हैं। यह मर्जियां 22 करोड़ उम्मत वाला हिसाब जे असल में 22 लाख भी नहीं है। हकीकत यह है कि मर्जी भाई, मैं कहता हूँ मर्जियों को जब मैंने कंप्यूटर तजनीद का देखा तो मैंने उससे, वो मेरा वाकिफ है, मतलब उसने मुझे दिखा दिया और मैंने उससे कहा कि यार ये मतलब, कहता है जी अब आपने देख लिया है, मैं क्या कह सकता हूं। तो बात ये है
कि मिर्ज़ई जो है ना ऊपर ये इस ग्रोह को चला रहे, वो बड़ा खास देखभाल कर बंदा रखते हैं अपने इनर सर्किट से मुराद मेरी है वो जो इंतजामिया चला रहे हैं ना, ये किसी ऐसे वैसे को नाजर नूजर नहीं बना देते। ये बड़ा देख के सोच भाल के कि आदमी रिलायबल है, हकीकत। हाँ, ये भी मैं आपको बता दूं, मिर्ज़ाइयों के बारे में मुझे बड़े इंटरेस्टिंग बातें पता है। अगर आप बहुत मुख्तलिफ कादियानी है ना और खलीफे को जाके कहते हैं मैं ते तेरे ते कुर्बान, ते तू मेरा ए, ते तू मेरा ओ, वो आपको कभी ऊंचे ओहदे पर नहीं रखेंगे जमात में। अपनी लड़की दे देगा लेकिन आपको नाजर नहीं बनाएगा। मुझे ये बात एक कादियानी ने पूछी तो मैंने कहा कि हाँ यार, बात तो बड़ी गड़बड़ है कि तुम्हें उसने लड़की तो दे दी लेकिन तुम्हें ओहदा नहीं देता। तो समझने वाले कादियानी समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो फिर मैंने एक ऐसे कादियानी से पूछा जो बिल्कुल जानने वाला था, वो इनके बड़े करीब का आदमी था। तो मैंने कहा कि यार ये चक्कर क्या है कि कितना मुखलिस तो कुड़ी दे देता है, ओहदा नहीं दे। कहता है देखो बात सुनो, उस आदमी को ये बिल्कुल नहीं पता कि निजाम कैसे चल रहा है, वो निजाम के बारे में नहीं जानता है। मैंने कहा मतलब निजाम के बारे में मुझे समझाओ ना। क्या कहता है कि मैं तुम्हें बता देता हूं, क्योंकि वो हाफ मैंने उसको मुसलमान कर लिया था। उसको मैंने बताया था कि कादियानी जो है ना फ्रॉड है, और वो एक हद तक मेरी बात मान गया। उसका सबूत ये है कि जब वो फौत हुआ तो उसका एक लड़का किसी और मुल्क में था, वो आया और उसने एक खत दिखाया। उस खत में वो ये लिख कर गया था, अपनी मौत से 3 महीने पहले का खत था, और उसने ये लिखा था कि मेरे बेटे मैं तुझे वसीयत करता हूं कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मुझे कादियानियों के कब्रिस्तान में मत दफन होने देना, और ये खत सबको दिखाना कि मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और मिर्ज़े की तकफीर करता हूं, उसे इनकार करता हूं, और मैं मुसलमान होता हूं। ये उसने लिख कर दिया हुआ था अपने बेटे को। तो उससे मैंने पूछा था तो उसने मुझे बताई भी पहली मर्तबा बात। कहता है कि बात ये है कि अगर तुम इस सिलसिले के बारे में जितने बड़े मुखलिस होगे ना, उतना ही वो आपको लोकल ओहदा तो शायद दे दें, लेकिन सेंटर में जहां पर आपको पता होगा कि निजाम कैसे चलता है, कभी ओहदा नहीं देंगे। हाँ, अगर तुम्हें उन्हें ये यकीन हो जाए कि आप जानते हैं कि असल हकीकत क्या है और आप इसमें हिस्सेदार बनना चाहते हैं। जैसे आप एक मुजरिम गिरोह में कोई शामिल होता है तो वो जानता है कि इसका काम लूटना, डाके डालना, जुर्म करना है, तो उसको शामिल कर लेते हैं। उसको पता पकड़ा जाएगा तो सजा भी होगी। तो उसने मुझे कहा कि ये सूरत हाल ऐसे ही है कि अगर आप इनको ये यकीन दिला दें कि आपको बिल्कुल ठीक पता है लेकिन फिर भी आप इनके साथ हैं, और इन 2 बातों का जब उन्हें यकीन हो जाएगा तो आपको ओहदेदार बना देंगे। मैंने ये एक बात, एक लड़का आया था पाकिस्तान से कादियानी, तो उसने मुझे एक दफा कहा कि यार मैं तो पाकिस्तान में था, नाजिम था खुदाम का, अपनी जमात में खुदाम का एक इनका होता है 16 साल से 40 साल के लोग ना, उसका इंचार्ज लोकल जो है। कहता है यहाँ पर ये मुझे कुछ नहीं बनाते। तो मैंने उसको कहा कि तुझे कादियानियत का पता है ना? वो कहता है हाँ ये तो बड़ा रूहानी। मैं क्या पुत्र रूहानी सिलसिला छड़ दे, ये देख तूने ये कहना है कि जो हजूर कहता है वो ठीक है, बाकी जो कहने ने गलत है, और तूने इनको बताना है कि मुझे पता है कि तू ये सिलसिला क्या है। उसने बिल्कुल वैसा किया। उसको पहले उन्होंने लोकल जमात का बना दिया, नाजिम खुदाम का, फिर उसको लंदन में वो आता होता था वीकेंड पर और उनको बताता था कि मुझे सब पता है कि ये क्या है। तो उसको उन्होंने मरकजी सदर खुदाम अहमदिया भी बना दिया, और वो बाद में एक जमात का नायब अमीर भी बन गया। तो सिलसिला ये है कि ये कादियानियों, मेरी गौर न गल सुनो, मैं तो कादियानियों के फायदे की बात बता रहा हूँ। कादियानियों करीब करीब आओ ना, मैं तुम्हें बताऊं
अगर तुम सिर्फ इखलास का इजहार करते रहोगे तो तुम्हें जमात में कुछ नहीं मिलने वाला। इखलास का इजहार करो, लेकिन साथ उन्हें यह भी बता दो कि जो तुम करते हो हम उसके भी हामी है, जनाकारी का भी तुम्हें पता है, सब चीजों का पता है। उन्हें जब पता लग जाएगा ना कि तुम सब जानते हो और उसके बावजूद उनके साथ हो, फिर तुम्हें ओते मिलने शुरू हो जाएंगे। या उन्हें तुम अपने मैं आपको एक और मिसाल देता हूं, मैं उस आदमी का नाम ना नहीं लूंगा, वो एक्स कादियानी है, मीडिया पर बहुत आता है। मैंने उस आदमी के किरदार को बड़े करीब से गौर से देखा तो मुझे एक बात पता लगी, आप उस शख्स से बात करें तो वो आपको नंगी नंगी बातें करेगा, औरतों की बातें करेगा, जनाकारी की भी बातें वो कर लेता है आदमी बड़े आराम से। अगर उसको आप इस्लाम के बारे में पूछे ना तो उसका बहुत कम नॉलेज है। वो कहता है जी मैं तो मरदई सा, मैनू की पता इस्लाम की, ना उसको कुरान भी नहीं पढ़ना आता, और वो इसका इकरार करता है। वो ये भी इकरार करता है कि उसके दूसरों के साथ ताल्लुकात रहे हैं। उसके साथ साथ वो आपको एक बात बताता है कि जनाब मैं अपनी लोकल मस्जिद का इमाम हुआ करता था और मेरे पास ओहदे थे वहां पर, और वो जब कनाडा आया तो तब भी उसके पास ओहदे थे। तो मेरे भाइयों, बात इससे एक ही मैसेज है कि इस जमात को पता था कि है तो बद किरदार, इसका किरदार तो है ही खराब। जब उन्हें पता लग गया कि किरदार जिसका खराब है उसका इस्लाम से, मुसलमान होने से क्या ताल्लुक है, उन्हें वो आदमी अच्छा नहीं लगता जो असल में मुसलमान होने का प्रिटेंड करे या असली मुसलमान हो कि मैं कुरान पढ़ता हूं, नमाज पढ़ता हूं, मेरा तकवा है, मेरा ईमान है। उस आदमी की तो कादियानी जमात उसको दूर करके कहती है कि तू साडे नाल रह, असी तेरी बड़ी इज्जत करने हैं, पर इत्थे तेरे वास्ते ओहदा कोई नहीं हैगा। उसको कभी कादियानी जमात ओहदा नहीं देगी, मर जाएंगे वो ओहदा नहीं उसको देंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये हमें असली मुसलमान समझता है। लेकिन जब इस आदमी जैसा बदकिरदार आएगा, जनाकार आएगा, सारे अनु कहेगा मैनू ना कुरान पढ़ना आंदा ना, मैं जमात दा बड़ा वफादार, वो कहेंगे ला परफेक्ट मैन। हमें बंदा ही ये चाहिए जो ये कहता रहे कि जनाब जो खलीफे ने किया है, जो इन्हें किया है, ये खास तौर पर कादियानी ग्रोह जो जाली खलीफों का धोखेसाज ग्रोह, उस ग्रोह की हकीकत बयान कर रहा हूं, तो वो कहेंगे परफेक्ट है। हालांकि एक असल मुसलमान होगा तो वो डरेगा, कहेगा जमात है, नौज बिल्ला खुदाई खलीफा है, अल्लाह रहम करे, तो मैनू तो इस्लाम ते नमाज ते कुरान की गल करनी चाहिए। कादियानी हो, जब तुम ये बातें करोगे जमात में तुम्हारी टके की कीमत नहीं होगी, वो तुमसे डरेंगे। वो कहेंगे ए कुत्ता कित्थों आ गया साढ़े को, इस्लाम की गल करदा, कुरान पढ़दा, जाके किते होर पढ़, साडा की ताल्लुक है कुरान इस्लाम में। लेकिन मुंह से कहेंगे जी हम तो मुसलमान हैं, हम तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसलमान हैं। और जिस एक्स कादियानी का जिक्र कर रहा हूं वो यही कहता होता था जी हम तो बहुत बड़े मुसलमान, बात जो हंस के अंदर यार मैंने तो अपना भी नहीं पता मैं मुसलमान है आके नहीं है। यही बात इस मिर्जा जेलमी की है। ये सिर्फ दिखावे की नमाज पढ़ता है, ये भी मैं आपको बता दूं। इसके एक जानने वाले ने एक दफा मुझे फोन किया था और मैंने उससे ये बात पूछी थी, मैंने कहा मतलब तहज्जुद ते पढ़ दो ना, उन्होंने कहा प्यो ने भी नहीं पता तहज्जुद की होती है। कहता है एक दफा मिर्दे जेलमी से उसने पूछा कि जनाब इशा की कितनी रकातें होती हैं, तो उसने मिर्दे जेलमी ने बताया 9 रकाता नहीं जी। तो वो उसे कहने लगा कि यार वो जो मतलब इस्लाम में लिखी हुई है कि टोटल रकातें नफल वाजिब और फर्ज सारा मिला के, कहता जी 9 बढ़िया ने। उसने कहा यार 17 रकाता ने, कहता नहीं जी वो बाकी सब फजूल ने। उसको इल्म ही नहीं था कि 17 रकातें हैं। और जब ये कुरान पाक पढ़ता है तो लफ्ज एक पढ़ता है, गलतियां 10 करता है। ये भी मिर्जाइयों की तरह है, बिल्कुल फोटो कॉपी फ्राडिया। हाँ जी ज्ञानी साहब तुसी चुप कर गए हो, माइक खोलो ना अपना। जी बस मैं आपके कीमती अल्फाज सुन रहा हूँ। नहीं मैं तो मशवरा दे रहा था कादियानियों को। ज्ञानी साहब वो कादियानी सवाल पूछते ने यार मैंने कोई ओहदा क्यों नहीं जमात च मिलता। मैं क्या तू उन्होंने दी कुड़ियां लैके नहीं जानता इस करके नहीं मिलता तेन ओहदा। देखिए ना ये कल्ट है ना, जिस तरह डेविडियन कल्ट था इधर वेको टेक्सास में,
ये कांट है ऐसे ही, जो निकले उस पर कोई भी मार देते हैं, घर जला देते हैं, बच्चे ले लेते हैं, बीवी ले लेते हैं, माँ बाप ले लेते हैं। हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है। बड़े जालिम लोग हैं ये। नहीं जालिम क्या यार, क्यानी साहब मैं आपको बताऊं, मुझे मिर्जाइयों ने एक दफे एक आदमी मिलाया, कहते हैं सीरा ने राह मौला ने, बड़े खुतबे दिया करता था वो अपने जिंदगी के आखिरी दिनों में, मिर्जा ताहिर। तो मैंने सुन रखा था कि एक चीज होती है सीरा ने राह मौला, और वो लोग हैं जिन्हें ज़ियाउल हक ने पकड़ के फांसी की कोठरी में रखा हुआ है। तो एक दिन इन्हां दी लंदन मस्जिद से एक बंदा फिरदा सी, मैनू क्या किसी ने क्या मतलब लेट 50s में था, किसी ने कहा ये असीरा ने राह मौला है। मैं बड़ा इंप्रेस हुआ, मैं क्या मतलब सीरा ने राह मौला, इसका मतलब बनता है अल्लाह ताला की राह में कैद होने वाला। हाँ, तो मैंने उसको कहा कि यार बड़ी मैं तो बुजुर्ग किस्म की चीज़ है, तूने फड़िया क्यों? कहता जी बस ऐसे ही इल्ज़ाम था कि मैंने 10-12 आदमियों को मार दिया। मैंने कहा तूने मारा 10-12? कहता नहीं मारे तो मैं 15-20 देखा हैं। नहीं सुनो दी गल, मैनू कहना, मैं कहना कुरान पे हाथ रखा लो, मैं बिल्कुल एक अरब सच कह रहा हूँ। मैंने सोचा कि शायद इसने फिर वो जैसे मुसलमान गुस्वात में होता है कि दुश्मन, मैंने कहा वो तो काफिर होंगे ना, तूने तो काफिरों के साथ कोई वजह होगी। कहते नहीं जी जमात का हुक्म आया, रोज साढ़े बलवा करन आ जाते थे, लाल निशान लाते सन। एक दिन मस्जिद के बाहर आया, मैंने बंदूक निकाली, ठा ठा मार दिया उनको। तो मैंने कहा उन्होंने कितने आदमियों को मारा तुम्हारी उस मस्जिद में उस दिन? कहता है जी जो असी 15 मारते थे उन्होंने तो मारन वाला रह केड़ा गया, साडा तो कोई नहीं मरिया। देख लो, मैंने कहा यार तूने 15-20 मारे, तुझे कोई ख्याल नहीं आया? मैंने कहा उनके पास बंदूकें थी। कहता बंदूका होंगी है तो फिर साढ़े भी मरदे ना। मतलब वो बंदा अनपढ़ था, वो सीधा जवाब मुझे दे रहा था। तो मैंने कहा तूने कभी सोचा नहीं, तू 10-12 साल कैद में रहा है, 15 साल शायद वो कहता था कि, और फांसी की कोठरी में रहा है, तूने बैठ के सोचा? कहता है हाँ मैंने सोचा था। मैंने कहा तूने ये नहीं सोचा कि वो तुम्हें मारने नहीं आए थे मुसलमान, वो तो शायद एहतजा। कहते हैं कि ये रोज रोज का हमने सोचा कि झगड़ा ही पिंड चो मुका दो, इन्होंने एक बारी दस दो कि साढ़े वाल आए तो यही कुछ होएगा। मैं कहा अच्छा, और मैंने कहा ये बताओ कि तुम्हारे गांव में मुसलमानों ने कितने कादियानियों को मारा है? कहता है जी उन्होंने तो कभी कोई नहीं मारे। मैं कहा यार तू तो बड़ी कमाल दा सिरा ने राय मौला है, इन्हों साडी जुबान चो गुंडा कहते हैं, जुर्म पेशा। ये अजी कादियानियत की हकीकत। वो डॉक्टर साहब वो जो था ना, वो बशीरा महमूद था या जो भी टीम का था मजीद, वो काना लानती जो था जानी, उसे कहा था कि हमें ये अपने हमें परमिशन चाहिए हिटलर की तरह, हम सारे मुसलमानों को खत्म कर देंगे। हाँ उसका तो यही मंत्र था उसने। तो देखे जब पाकिस्तान बना था और 1953 में जब फौज में इनका बड़ी होल्ड थी और इन्होंने मार्शल भी लगवाया अयूब खान को आगे करके, क्योंकि पाकिस्तान से एक प्रॉब्लम है मिर्ज़ाइयों को। पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेसी में और हुकूमत में, जैसे ये शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की मां मर्ज़ैन है, ये जो है आपने सदर जरदारी बनाया, इन्हें जानबूझ के अपनी कुड़ी एक मर्ज़ई नूं दिती हुई। अपना आप शमीन की बात कर रहे हैं, शमीन अख्तर जो है नवाज की, शहबाज की अम्मी, वो मर्ज़ैन है। मर्ज़ैन बत्ती मर्ज़ैन। अच्छा ये उधर के जलंधर के? हाँ जलंधर तो भरा हुआ था ना मिर्ज़ाइयों से। जलंधर में 3 फैमिलीज ऐसी थी जो बड़ी मशहूर हुई बाद में। एक इमरान खान की फैमिली थी ना, शौकत खानम का भी। हाँ ये एक बरकी फैमिली थी, बरकी जो भी खान, उसकी माँ शौकत खानम। शौकत असल में लोग गलती करते हैं, इसलिए मर्ज़इयाँ जिहड़ा है ना बड़े धोखेबाज ने मर्ज़ई। मुझे किसी ने कहा कि शौकत खान इमरान खान का नाना जो है वो गोहर अली था। मैं कहा यार खुदा दा खौफ कर,
इमरान खान है 70 साल का, लेकिन इसका नाना जो है ना, अगर जिंदा भी होता तो मतलब वो मिर्ज़े कादियानी के ज़माने तक मुश्किल से पहुंचता कि उसका नाम मिर्ज़ा कादियानी एक ऐसी किताब में लिखते जो उसने 1890 के दहाई में लिखी हो। असल में जो रिश्तेदारी जिसका जिक्र मिर्ज़ा कादियानी की किताबों में मिलता है, मुंशी गौहर अली खान है उसका नाम, उसने सिर्फ मुंशी गौहर अली लिखा है, जलंधर वाला। वो शौकत खानम का नाना था, इसकी मां का नाना। अगर आप ये हकीकत जान लें कि वो इमरान खान का नाना नहीं, अब मुंह से बात निकलती है तो बहुत बदल जाती है। जैसे मैंने भी बात मुख्तलिफ अंदाज में की, और जब वो दूसरों तक पहुंचती है तो फिर मैं खुद सोचना है यार मैं तो ये किया ही नहीं थी, और दूसरा ऐसे ऐसे बोल रहा होता है। तो लेकिन खैर ये इंसान की नेचर है, इसको आप ब्लेम नहीं कर सकते। तो आपका मतलब है डॉक्टर साहब कि वो जो 15 नंबर है मिर्जे के शैतानी दो या जो यार थे मुंशी गौहर खान जलंधरी, वो शौकत खानम का नाना है? हाँ, शौकत इसकी माँ का नाना है वो। ठीक हो गया, तो फिर इसका आगे बाप है? हाँ जी, इसका बाप जो है उसकी फैमिली जो है वो मिर्जाई नहीं थी। इसके बाप का नाम मुझे याद होता है यार, आज याद नहीं आ रहा। जिस बाप का नाम है इसने कभी लिखा भी नहीं है, अजीब सा नाम है। वो मुझे पता है, इसके बाप की मेरे पास फोटो भी है। और इसके जो इसका जो नाना था वो उसका क्या नाम था? वो भी कलेक्टर था शायद कस्टम का। इसके बाप का नाना जो था नहीं, इसकी माँ, इसका जो नाना था इमरान साहब का। हाँ, मतलब देखें, एक बात मैं आपको बता दूं, डॉक्टर साहब इकरामुल्लाह खान न्याजी। हाँ, इकरामुल्लाह खान न्याजी एग्जैक्टली राइट, बिल्कुल ठीक आपने कहा। न्याजी और ये जो था ना मुंशी गौहर का बच्चा, इसकी बड़ी आपस में यारी थी। हाँ, वो इसके अलावा भी जब इसकी शौकत खानम से शादी हुई तो उन्होंने एक शर्त रखी कि ये बैत करेगा मिर्जे महमूद की, और इसने बैत की मिर्जे महमूद की, कादियानी हुआ इकरामुल्लाह। अच्छा, हाँ, इकरामुल्लाह ने बैत की हुई है जी। यार लोकी मेरिया गल्ला मनते ही नहीं, मैं सबूत दिखा तक मैंने तो लोगों को कहा था कि ज़ियाउल हक भी मिर्ज़ाई है। अब जब आपको हमने सबूत दिखा दिया, अल-फज़ल अखबार, मिर्ज़े कादियानी और कादियानियों के घर, उसके बाप की अकबर अली की फोटो दिखा दी, ज़ियाउल हक की फोटो मिर्ज़े महमूद के साथ दिखा दी। 1941 में उसने बैत की मिर्ज़े महमूद की, लेकिन वो एक्स कादियानी आप समझ लें, क्योंकि अब्दुल ने जो गद्दारी की इस्लाम के साथ और मुसलमानों के साथ, उसने कादियानियत छोड़ दी। और उसका हमें अब लोग जो है ना हकायक को देखते नहीं है, वो कहते हैं सानू लिया लिखिया या लिया स्टैंप पेपर ते उत्थे ओदी गवाही लिखा के लिया, थले दस्तखत करके लिया। ऐसे दुनिया नहीं चलती है, दुनिया हकायक पर चलती है और हकायक की इंटरप्रिटेशन पर ही अदालतें फैसले देती हैं। किसी ने, कातिल ने आज तक लिख के नहीं दिया कि मैं जनाब इसको मैंने मारा है, वो तो अकबाली मुजरिम हो गया, उसके लिए तो मुकदमा चलाने की जरूरत नहीं, उसको तो सिर्फ सजा मिलनी है। अच्छा डॉक्टर यहाँ पर लाते हैं कि ये जो इमरान साहब है या नवाज शरीफ है या जरदारी है, क्या इनमें से भी किसी ने इन कुफार की बैत की हुई है? जरा हाल पर ले आते हैं। किसने? सर इमरान खान है एक। इमरान खान के बारे में मैं आपको बता दूं, देखिए मैं इमरान खान के खिलाफ नहीं हूँ, ये बात आप कोई ना समझे, मैं किसी के भी खिलाफ नहीं है, सब भी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ये लोग। इमरान खान के बारे में बता दूं, उसका कोई सबूत नहीं मिलता कि उसने कभी बैत की, लेकिन इमरान खान, ये सवाल कि क्या इमरान खान इस बात से वाकिफ है कि वो कादियानी फैमिली से, मैं कहता हूँ बहुत शिद्दत के साथ वाकिफ। बल्कि इमरान खान ने एक दफा मिर्जे ताहिर को ये एक उस वक्त एक पार्टी किसी ने दी थी, 14 अगस्त का था, और मैं भी उस पार्टी में था। किसी कोई मुझे ले गया, मतलब मुझे किसी को इनवाइट किया था तो वो मुझे भी ले गया अपने साथ। वहां पर इमरान खान भी था, कादियानियों का खलीफा भी था, कादियानियों के चंद और लोग भी थे, और भी लोग आए हुए थे।
वो मतलब एम्बेसी में नहीं दी थी, लेकिन किसी पाकिस्तानी ने वो पार्टी दी थी। बड़ा अमीर और कबीर ईस्ट लंदन में वो पाकिस्तानी रहता था, तो बड़ा असर और रसूख वाला था। उसका नाम मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, बिजनेसमैन था। तो वो मुझे बाद में पता लगा कि कादियानी था, तो इसलिए कादियानी खलीफा भी वहां था, इमरान खान भी आया हुआ था और बहुत सारे पाकिस्तान का सफीर भी था। तो इमरान खान ने, और मैं खड़ा सुन रहा हूं, मतलब उन दिनों तो मैं पढ़ा करता था, लेकिन मैंने चूंकि आंखों से देखा तो मुझे हैरानी हुई। तो इमरान खान ने कादियानी खलीफे से कहा था कि आप तो वाकिफ हैं, मेरा सारा खानदान आपकी जमात से ताल्लुक रखता है। तो मुझे उस वक्त कोई इतनी ऐसे लगी नहीं, मैंने कहा कि ठीक है चलो रखता है तो फिर रखता होगा। मुझे उस वक्त ये भी इल्म नहीं था कि इसने तहरीक इंसाफ नामी एक पार्टी बना रखी है, क्योंकि वहां से कोई जीतता नहीं था, उसका कोई MP MNA MPA होता ही नहीं था पाकिस्तान में। वो तो बहुत सालों तक तो कुछ नहीं। शादी आप तो शादी आपके माइक में शोर आ रहा है बहुत ज्यादा। शादी आपके माइक में शोर आ रहा है। आप बताएं, आप आ रहे हैं? जी जी शादी आ रहा है। अब भी है? शादी आप कॉल काट कर दोबारा तशरीफ ले। अभी तो ठीक है। हाँ तो ये हालात है गोल्ड स्मिथ प्रोजेक्ट भाई, ये उसके सारे अशरीफ भी और इमरान जी। जरा मुझे ये बताएं, ये कहते हैं कि मैं मरूंगा मदीने में और फिर लाहौर में मरा, मैं जरा नया हूँ, इसकी क्या तावील पेश करते, जरा इनकी तावील। इनका और है मेरे प्यारे, इनका मक्का जो है ना वो उधर कादियान में है, इनका मदीना लाहौर में है। ये खबीस के बच्चे हैं, ये मर्जी है, कादियानी है, सीनियर हैं, जूनियर हैं, दीनदार हैं, पता नहीं क्या क्या इनके कल्ट के नाम है मेरे प्यारे जी। अभी डॉक्टर साहब आगे। हाँ जी, अब कुछ बेहतर हुआ है? जी जी बेहतर है जी। हाँ जी, अब बात करें। मतलब मैं तो वैसे बता, इमरान खान के बारे में कोई सबूत नहीं है कि उसने कभी बैत की है, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, तो ये जो दूसरा बंदा है आसिफ ये जरदारी, तो आप देखें ना कि मिलिट्री पर इनका आज भी कंट्रोल देखें कि ये जो मैरियट है, जीन मैरियट जो कमिश्नर है लंदन की, इसके इतने क्लोज तलकात है ना मोदी के साथ, इंदवता के साथ कि ना पूछें। और फिर ये किस तरह इसने किया है सारा मामला, और नवाज शरीफ भी उसी खानदान के साथ मुंसलिक है। तो ये समझ नहीं आ रही कि ये पाकिस्तान को किस तरफ ले जाए। और इन्होंने एक नया प्रोग्राम बनाया मुसलमानों के कताल का, उसको कहते हैं हस्बे इस्तेकाम। इनके वो मुसलमानों को मारना चाहते हैं, सीधी सी बात है। हाँ देखें, उनके लिए आपको एक बात समझनी होगी, ये जो जरदारी है ना, ये मुसलमान तो है नहीं है, ये आपको नाम का मुसलमान है, मतलब एक दावा करने वाला। इसको नमाज पढ़नी नहीं आती, इसको कलमा पढ़ना नहीं आता, ये बात आपको शायद इल्म नहीं है। अगर पढ़ेगा भी तो गलत सलत पढ़ेगा, जैसे इमरान खान पढ़ता है। ये नाम के मुसलमान हैं, लेकिन इस्लाम से इनका दूर दूर का ताल्लुक भी नहीं है। और इस्लाम के नाम पर अगर आप कहें कि ये हुर्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं। जरदारी के बारे में तो आपको 100% यकीन दिलाता हूँ। बल्कि उसको तो अगर मेरा ख्याल वो गया भी है मक्का शरीफ और हरमैन शरीफ गया भी है, तो बस दिखावे के लिए गया है। उसको किसी ने पूछा था जरदारी को कि यार तू कभी गया है? तो उसने कहा हाँ मैं गया हूँ। तो उसने कहा वहाँ तूने नमाज, तो कहता है नमाज की पढ़नी सी, जो लोग कर रहे थे मैंने भी कर दिया, 2 दफ़ा ऊपर उठा 2 दफ़ा नीचे गया, बस यही काम है। इमरान खान जो है वो जनाब जाता है नंगे पांव जाता है और चप्पलें उतार के, जनाब सर्दियों के दिन थे, तो मैंने तो इमरान खान को कहना चाहता हूं कि गर्मियों में जाओ और चप्पलें उतार कर जाओ, फिर मैं देखांगा कि तुम मुसलमान है कि नहीं। इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। ये ट्रेजेडी है पाकिस्तान की
ये मुसलमान होते तो पाकिस्तान की तरफ किसी की जुर्रत ना होती आंख उठाकर देखता, ये पाकिस्तान को बेच ना देते। इन्होंने कर्जा लिया। मैं आपको बताऊं, देखिए मेरा इमरान खान से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं आपको एक फैक्चुअल बात, इमरान खान ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा कर्जा लिया। इमरान खान 2018 में जब आया तो पाकिस्तान का कर्जा 21 बिलियन डॉलर था या 20 बिलियन डॉलर था। IMF से उसका कोई ताल्लुक नहीं था। इसने 50 बिलियन डॉलर का कर्जा लिया। पाकिस्तान के 70 साल के कर्जे से 150 गुना ज्यादा कर्जा, 150% ज्यादा कर्जा लिया इसने। उसका कोई हिसाब नहीं मिलता, बल्कि उसमें से 21 बिलियन डॉलर कहा जाता है इसके 2 लड़कों के खुफिया अकाउंट में मौजूद है। यह पाकिस्तान के साथ एक ऐसा धोखा है, और उसकी ऐसा क्यों किया गया, वो बड़ा जानबूझकर किया गया। मुल्क को तबाह करने के आजकल 2 तरीके हैं, एक उसको फाइनेंशियली तबाह कर दें, दूसरा उसको मिलिट्री एक्शन से तबाह कर दें। अगर आप उसको पहले फाइनेंशियली तबाह कर देंगे ना, मिलिट्री एक्शन बड़ा आसान हो जाएगा। ये काम उन्होंने बहुत सारे मुल्कों में, जो लोग वारफेयर से वाकिफ हैं वो इस बात को जानते हैं, और ये बड़ा पुराना कदीम तरीका है कि कदीम दौर में जब ये इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी और तलवारों से लोग लड़ते थे तो वो मुहासरा कर लेते थे शहर का, महीनों सालों तक मुहासरा रखते थे। बल्कि सल्तनत उस्मानिया के जो हुक्मरान थे, जिनको खलीफा कहते थे, उनमें से एक 18 साल हुक्मरान ने 3 साल तक इस्तांबुल शहर का मुहासरा किए रखा, यहां तक कि वो फाके से मरने लग गए, और फिर उसने शहर फतह कर लिया। यह बड़ा पुराना ट्रिक है। इमरान खान ने पाकिस्तान को उसी सूरत हाल में ला दिया। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक सवाल है, ये आपने जो मिर्ज़ा काने की दजाल काफर कज़ाब की जो किताब है उसमें लिखा है कि नबूवत हासिल करने की दुआ, यकीनन आपने पढ़ी, हासिल करने की दुआ मैंने भी दसो जी। वो ये दुआ है ना कि इया का नाबुदु व इया का नस्ताईन। नहीं, ये नबूवत हासिल करने की दुआ नहीं है, ये उसकी किताब में लिखी हुई है। अगर आप कहेंगे तो थोड़ी देर बाद मैं आपको किताब लाकर उसका पूरा रेफरेंस दूंगा। मिर्ज़ा कादियानी ने की किताब की आप बात करते हैं ना, मिर्जियों की किताब। हाँ, और लिखा हुआ है, मुझे पता है, लेकिन ये ऐसे नहीं लिखा हुआ कि ये वो दुआ नहीं पढ़ता हर वक्त? नहीं, देखें, उसको ये दुआ जो है ना वो पिंकी पीरनी ने बताई थी, इया का नाबुदो। देखें, आपको मैं दुआ की हकीकत बता दूं, ये आप समझ जाएं। एक अगर आप दुआ अल्लाह से कर रहे हैं ना, देखें ये जो कुरान की दुआएं हैं ना, ये जो जानने वाला मुल्हिद है और जानने वाला एक आमिल जिसको कहते हैं ना, एक जादूगर आप कह लें। अगर आप किसी जादूगर से नहीं मिले तो अच्छा है, मैं मिला हूं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं को जादू दिखा सकते हैं, कर सकते हैं, और ऐसी ऐसी बातें कर सकते हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। बल्कि वो आपके दुश्मन को ऐसे आपके रास्ते से हटा सकते हैं कि जिसके, और मैंने उनमें से मतलब मुझे जब पता नहीं था तो मैं उन पर यकीन रखता था। मैं आपको एक बड़ी मशहूर औरत थी, वो फौत हो गई हुई है, उसका नाम मुझे नहीं आता, वो मैथमेटिशियन के तौर पर मशहूर थी। वो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जाती थी और वो कहती थी कि मुझे 500 पाउंड दो या 500 डॉलर दो, तो तुमने जो काम करना है वो मैं करवा दूं। मैं उसका नाम ढूंढ के आपको बता दूं। मैं भी उससे मिलने गया, ऐसे नहीं मैं कहानी बयान कर, मैंने कहा देखें तो सही, और मैंने उसको 500 पाउंड दिए और उसने मुझसे 15 मिनट बात की, और जब वो मेरी आंखों में देखती थी कहती थी कि मेरी तरफ मत देखो। तो मैंने कहा मुझे तुम्हें क्या खौफ है मुझसे? कहती देखो तुम्हारा काम जो है ना, तुम मुझे टेस्ट करने आए हो, तुम्हें काम शाम कोई नहीं है मुझसे, और ये जो काम तुम कराना चाहते हो तुम्हारा तो वैसे भी हो जाएगा। फिर उसने एक पर्ची लिखी तावीज़ की तरह और कहा कि इसको जेब में रख लेना, तुम्हारा काम 6 हफ्ते में हो जाएगा। मैंने कहा मेरी तरफ देखती क्यों नहीं है? कहती है कि जो इल्म मैं जानती हूं
वो इजाजत नहीं देता कि तुम जैसे लोगों की आंखों में देखा जाए, मेरा दिल घबराता है। मैंने कहा क्यों? कहती है कि तुम कोई ऐसी चीज जानते हो जो मेरे जो काम कराते हैं उनको पसंद नहीं। तो मैंने कहा मैं हाफ़िज़ कुरान हूं। कहती है आप चले जाओ, फिर तुम पहले बताते मैं तुम्हें सोच बुलाती ना अंदर। तो ये बहुत सालों की बात है और वो मेरा काम वाकई हो गया 6 हफ्ते में। और जब